ادھر ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھتے، امریکہ کے ساتھ مذاکرات پاکستان کے ذریعے جاری ہیں۔ ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ اور اسرائیل خطے کے لیے خطرہ ہیں، خطے کے ممالک خصوصاً UAE کو حالیہ واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھتے، ہمیں خطے کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات پاکستانی ثالثی کے ذریعے جاری ہیں۔ مزید کہا ہم آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے نئی طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں، آبنۂ ہرمز میں طریقہ کار کے حوالے سے سلطنت عمان کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سخت نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، انہیں فوری طور پر آگے بڑھنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، وقت انتہائی اہم ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے جلد معاہدہ نہ کیا تو اسے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ہم سے معاہدہ کر لے، معاہدے میں ہی ان کا فائدہ ہے، بصورت دیگر ایران بہت برے وقت سے گزرے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے امریکہ کے درجنوں طیارے گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جرمنی میں قائم امریکی اڈوں سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی کارگو طیارے اسلحہ لے کر تل ابیب پہنچے۔ یہ کھیپ ایران کے خلاف ممکنہ دوبارہ جنگی کارروائیوں کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ بتایا گیا طیاروں میں عسکری ساز و سامان شامل ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث اسرائیلی فوج اپنی آپریشنل تیاری بڑھا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والے حملے کے ذمہ داروں کے خاتمے کا مشن مکمل ہونے کے قریب ہے۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ غزہ کے 60% علاقے پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے کئی رہنما اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے عراق کے مغربی صحرائی علاقے میں کم از کم 2 خفیہ فوجی اڈے قائم کر رکھے تھے جو ایران کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہوتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اڈے 2025 کی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی فعال رہے اور موجودہ کشیدگی میں بھی ان کا کردار سامنے آیا ہے۔ ایک اڈے کا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک عراقی چراغا وہاں پہنچ گیا اور اس نے فوجی سرگرمیوں، ہیلی کاپٹرز اور عارضی رن وے کو دیکھا۔ چراغے کی اطلاع پر عراقی فوج نے تحقیقاتی ٹیم بھیجی جس پر حملہ ہوا جس میں ایک فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ عراقی حکام نے ابتدا میں اس واقعے کو غیر ملکی فورسز کا حملہ قرار دیا، بعد میں شبہ اسرائیل پر ظاہر کیا گیا کیونکہ امریکی فورسز سے ملوث ہونے سے انکار کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کو ان خفیہ اڈوں کے بارے میں پہلے سے آگاہی تھی اور بعض مواقع پر عراقی ریڈار سسٹم کو عارضی طور پر بند کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ عراق نے تاحال ان اڈوں کی سرکاری تصدیق نہیں کی۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ خطے میں کشیدگی اور خفیہ عسکری سرگرمیوں کے حوالے سے ایک اہم چین نے اگلے 3 سال کے دوران امریکہ سے 17 ارب ڈالر کی زرعی مصنوعات خریدنے کا وعدہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ فیکٹ شیٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر ٹرمپ سے ملاقات میں زرعی مصنوعات خریدنے کا وعدہ کیا۔ فیکٹ شیٹ میں واضح کیا گیا کہ 17 ارب ڈالر کے نئے وعدوں میں اکتوبر 2025 میں امریکہ سے سویا بین خریدنے کا وعدہ شامل نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے چینی وزیر خارجہ کے US چائنا بورڈ آف ٹریڈ اور US چائنا بورڈ آف انویسٹمنٹ قائم کرنے کے بیان کی بھی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے گزشتہ دنوں دورہ چین کے بعد واپس وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا چین کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے ہوئے، ہمارے تعلقات بہترین ہیں۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید گہرے کرنے پر خبردار کر دیا ہے۔ قطری میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید گہرے کرنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے ابوظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے، تاہم ایران کے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات سے آگاہ ہے اور امارات کو اسرائیلی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات شدید حملوں کی زد میں رہا، جبکہ بعض اطلاعات میں ممکنہ جوابی کارروائیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کو ایران مخالف سرگرمیوں میں براہ راست ملوث قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران پر حملوں کے وقت امارات کی مذمت بھی نہیں ہے، اس لیے ابوظہبی کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے خفیہ دورہ امارات کی خبروں پر متحدہ عرب امارات نے تردید جاری کر دی تھی۔ آپ کو بتائیں پاکستان نے سینتاس معاہدے سے متعلق عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے پر اظہار اطمینان کیا ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستانی موقف کی توثیق ہے۔
भारत पर लाजिम है पाकिस्तान को मुआहिदे की पासदारी का जायजा लेने के लिए दरकार मालूमात फराहम करे। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा, सेंतास मुआहिदा मगरबी दरियाओं पर भारत की पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हुदूद आयद करता है। ये हुदूद महज रस्मी नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर ही लागू होती है। हुकूमत का कहना है, भारत फर्जी पैदावारी सलाहियत मसनूई लोड क्रूज के जरिए ज़ख़ीरा आब में इजाफा जायज़ करार नहीं दे सकता। आलमी सालिसी अदालत ने अपने फैसले में कहा, भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत किशन गंगा और रितले मंसूबों से मुतालिक तमाम मुतालिका तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ खबर दें। वफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी कानून से मुतालिक फैसला जारी करते हुए खुदकुशी को जुर्म करार दे दिया। फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, जस्टिस मोहम्मद अनवर इकबाल और जस्टिस अमीर खान ने केस का पहले से महफूज फैसला सुनाया। हुकूमती कानून साजी को वफाकी शरई अदालत ने गैर इस्लामी करार देकर कलादम करार देते हुए 2022 के एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 2022 की कानून साजी में खुदकुशी को कोशिश की जुर्म करार देने की शिक डिलीट कर दी गई थी। कानून साजी में ज़ाब्ता फौजदारी का जो सेक्शन एक्ट से डिलीट हुआ था, वफाकी शरई अदालत ने आज बहाल कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना के रुस्तम बाजार के करीब रिमोट कंट्रोल धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। DPO मोहम्मद ताहिर के मुताबिक धमाके में अहमद जई वजीर कबीले के सरबरा भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हमले में कबायली सरबरा की गाड़ी को निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जबकि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर फितना खवारिज से तंग खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने बड़ा फैसला करते हुए दहशतगर्द रिश्तेदारों से सरेआम लाताल्लुकी और पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। ज़िला बनू के रहायशी वज़ीर इकबाल ने अपने दहशतगर्द बेटे खारजी शाकिरुल्लाह से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बनू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खारजी शाकिरुल्लाह के वालिद ने अपने बेटे से ऐलान लाताल्लुकी करते हुए कहा, खारजी शाकिरुल्लाह के अच्छे बुरे आमाल और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। वालिद का कहना था, खारजी शाकिरुल्लाह तकरीबन 6 माह कबल घर छोड़कर चला गया था और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो गया। खारजी शाकिरुल्लाह को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। रिश्तेदारों समेत अहल खाना को भी इसके पीछे भेजा गया, मगर वो वापस नहीं आया। खारजी के वालिद का कहना था, हम रियासती इदारों, पाक फ़ौज और हुकूमत पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और हर किस्म के ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को CNG सेक्टर को गैस फराहमी की मअतली पर ख़त लिख दिया। खत में खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस फराहमी की बंदिश का मसला हल करने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर आला ने ख़त में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है। सूबे को आइनी हक से महरूम ना किया जाए। सूबे तकरीबन 494 MMCFD गैस पैदा करता है, जबकि इस्तेमाल सिर्फ 120 MMCFD है। खत में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा के CNG सेक्टर को 36 से 400 MMCFD गैस दरकार है, जो खाद के शोबे को मुंतकिल की गई है। CNG सेक्टर को गैस बंदिश से सूबे में बेचैनी और अमन के मसाइल पैदा होने का खदशा है। वज़ीर आला ने खत में कहा है कि आइन के आर्टिकल 158 के तहत गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस इस्तेमाल का पहला हक हासिल है। पेशावर हाई कोर्ट भी CNG स्टेशन की बंदिश को गैर मुनसिफाना करार दे चुकी है। CNG बंदिश से हज़ारों अफराद के रोज़गार मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने और CNG सेक्टर को गैस का मामला एजेंडे में शामिल करने की भी दरख्वास्त कर दी है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में जारी वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की मुख्तलिफ क्लासेस का दौरा किया और नौजवानों को फराहम की जाने वाली जदीद IT और डिजिटल तरबियत का जायज़ा लिया। गवर्नर सिंध ने कहा, गवर्नर हाउस सिंध नौजवानों के लिए जदीद IT और डिजिटल सहूलियात का मौसर मरकज़ बनेगा, जबकि नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल और तरक्की की असल ताकत हैं। उन्होंने बताया, प्रोग्राम के तहत कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा को बाकायदा सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। उन्होंने कहा, हुकूमत का हदफ 2030 तक IT एक्सपोर्ट्स को $25 बिलियन तक पहुंचाना है, जिसमें नौजवानों की महारत कलीदी किरदार अदा करेगी। इस मौके पर डॉक्टर फ़ाहद शफीक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, गवर्नर्स हाउस सिंध में 22 मुख्तलिफ शोबों में जदीद तरबियत फराहम की जाती है, जबकि नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम, स्कॉलरशिप्स और बिजनेस लोन समेत दीगर सहूलियात भी दस्तयाब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तारपुल से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द ने जरदारी हाउस कराची में मुलाकात की है।
वफ्द में ज़ुबैर मोतीवाला, रेहान हनीफ, एम जावेद बलवानी, तारिक यूसुफ और इदरीस मेमन शामिल थे। मुलाकात के दौरान ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल, सन्नती और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ और मईशत की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फरियाद तालपुर ने ताजिर कम्युनिटी के नुमाइंदगान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ और सन्नतों की बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, अरकान कौमी असम्बली मीर एजाज हुसैन झाकरानी और कर्नल रिटायर्ड असद नियाज़ी, MP सुहेल अनवर सियाल, MP सादिया जावेद और करम उल्ला वक्कासी। कराची में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी हब रिवर रोड रईस गोट चेक पोस्ट के करीब खुफिया इत्तला पर की गई, जहां मुलजिम कोयटा से कराची आ रहा था। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, डेटोनेटर, बॉल बेयरिंग और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम माजी में तखरीब कारी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस रहा। हसास मकामात की रैकी भी कर चुका था। सिक्योरिटी इदारों का कहना है मुलजिम बैरून मुल्क मौजूद अपने साथियों से राबते में था और शहर में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द को मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए CTD पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। कराची में सच बोलने की कीमत, सहाफ़ी फिर निशाने पर। सुजानी तौर में निजी चैनल के क्राइम रिपोर्टर मलिक फैसल पर मुबैना हमले के बाद सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठ गए हैं। मुतासरा सहाफ़ी ने सियासी कारकुनों और लैंड माफिया पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं सहर खान से। सहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके सरजानी टाउन में मुबैना हमले का सहर, मामला आपको संगीन आवाज़ आ रही सूरत मेरी? हाल जो है जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी सहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची के इलाके सरजानी टाउन में सहाफी पर मुबैना हमले का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। निजी चैनल से वाबस्ता क्राइम रिपोर्टर मलिक फैसल ने इल्जाम आयद किया है कि उनके घर पर 50 से जायद मुस्लिम अफराद ने जो है धावा बोल दिया, अहले खाना को हरासा किया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। मुतासरा सहाफी के मुताबिक हमले में मुबैना तौर पर सियासी जमात के कुछ कारकुन और लैंड माफिया से वाबस्ता अनासर भी शामिल थे। मलिक फैसल का कहना है कि वो काफी अरसे से इलाके में लैंड माफिया और गैर कानूनी कब्जों से मुताल्लिक खबरें रिपोर्ट कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें मुसलसल धमकियां भी दी जा रही थी। इनके मुताबिक रात गए अचानक मुतअद्दिद अफराद जो है वो घर में दाखिल हुए, तोड़फोड़ की और खौफो हरास फैलाया। सहाफी ने इल्जाम ये लगाया कि हमलावरों ने घर पर कब्जे की कोशिश भी की है। मुतासर रिपोर्टर का कहना है कि वाकये की फौरी बाद पुलिस को इतला दी गई, लेकिन रिवायती यकीन दहानियों के बावजूद अब तक कोई वाज़ेह और मौसर कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत बाज़ शुक्रिया अफराद सहर खान बाअसर तफसीलात ने, का। जिसके बाइस कार्रवाई में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ 9 बड़ी कार्रवाइयां, 11 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ 9 कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें 11 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मजमूई तौर पर 193.1 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई, जिसकी मालियत 2 करोड़ 8 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। इस्लामाबाद सेक्टर H10 में यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी से 6 किलो चर्स बरामद की गई और 3 मुलजमात को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ भी किया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर रियाज जाने वाली मुसाफिर के सामान से मिठाई के डब्बे में छुपाई गई 1.3 किलो जेनेक्स गोलियां बरामद की गईं। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर 14.4 किलो चर्स, हारू टोल प्लाजा अटक के करीब मोटरसाइकिल सवार से 7.2 किलो चर्स, नाजमाबाद कराची में 6 किलो चर्स और संजानी टोल प्लाजा के करीब 4.8 किलो चर्स और 1.5 किलो अफ्यून बरामद की गई। GT रोड पेशावर के करीब कार्गो ऑफिस में फ्रूट के डब्बों से 8.4 किलो चर्स, जबकि दालबंदीन के इलाके जहूर कॉलोनी के करीब गाड़ी से 140 किलो अफ्यून बरामद की गई। तमाम मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के 1997 के तहत दर्ज किए गए और तहकीकात शुरू कर दी गई। वर्किंग जर्नलिस्ट फोरम के ज़ेर एहतमाम मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की पहली सालगिरह के मौके पर कराची में एक अजीम उलशान पीस वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का आगाज़ कराची प्रेस क्लब चौरंगी से हुआ, जो कराची प्रेस क्लब पर इख्तिताम पसीर हुई। पीस वॉक में सहाफ़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात,
सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉक की क़यादत WJF के बानी और मरकज़ी सदर मियां खुर्रम शहजाद ने की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा कि पीस वॉक का मकसद मुल्क में अमन और कौमी यकजहती, जमहूरी इक़दार, आज़ादी सहाफ़त और अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करना है। शुरका ने कौमी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर अमन, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के पैगाम दर्ज थे। मुकर्रीरीन ने बुनियान मरसूस को कौमी इत्तेहाद और इस्तेकाम की अलामत करार देते हुए कहा कि सहाफ़ी बरादरी हमेशा मुल्क में अमन और सच्चाई के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी